Hi, good evening to everyone. So, today we are going to talk about what to do next once you receive the offer letter for training from Bharat Electronics Limited. So, Bharat Electronics Limited is is basically a public sector unit. It is owned by the government of India, and they basically provide 1 year of training to the graduate students and also to the diploma students. Graduate students, those who completed their BTech or BE, Bachelor of Technology or a Bachelor of Engineering, and then they give them 1 year of training in whatever the streams they belong to. So this offer letter is of diploma holder or diploma students who done their diploma, and now they will undergo for a training of one complete 1 year with some stipend. We will talk about all terms and conditions next here. So once you go to like the head office, this offer letter you receive after visiting the once you get the email regarding that you have been shortlisted. Once you apply for this training, and after getting shortlisted, you are supposed to report to the document verification center. And if it is in Bengaluru unit, so you have to report to Bengaluru. If it is Ghaziabad, you have to report Ghaziabad. If it is from Hyderabad, you have to report Hyderabad. So it depends upon like for which unit you have applied. I had applied for Bangalore unit, so I had to report Bangalore bill office, head office. So we will talk about what to do next after receiving the offer letter. Okay, so this is offer letter, and they have mentioned my name because this is my offer letter and this belongs to me. I had applied for this training, and I also did my document verification. After having document verification, they give you this offer letter. Now let us discuss what are the things that you have to do in this period of time before joining, because they have called you on 27th. They have mentioned here on 27th you have to report. So let us see. Provisional offer for apprenticeship training. We are pleased to inform you that you have been provisionally selected for 1 year apprenticeship training, technician apprenticeship through National Apprenticeship Training Scheme. So we know all this stuff. Let us come to the main point. You are required to report to Human Resource Department of the Center for Learning and Development, Bharat Electronics Limited, Jalhali, Bangalore, 560 OK, on 27 January 2022 at 9 a.m. तो हमें जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिस में 27 जनवरी को 9 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है हमें रिपोर्ट करना है, ठीक है. इन केस इफ़ यू डू नॉट रिपोर्ट, वी शैल प्री अज्यूम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर एंड स्टैंड्स कैंसिल्ड. यस, अब तो हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया है. अब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, हमारे पास एक ऑफर लेटर आ गया. और इस मेंशन डेट में अगर हम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इससे ये माना जाएगा कि हम इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हैं और हमारा जो है वो ट्रेनिंग वो कैंसिल हो जाएगा. दूसरी चीज़ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ फोटो कॉपीज़. अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ज्वाइनिंग के टाइम पे लेकर जाना है, मतलब 27 को लेकर जाना है. क्या क्या है? इनरोलमेंट डिटेल्स, हाँ, प्रिंट आउट ऑफ द यूज़र आईडी पासवर्ड ऑब्टेन ऑन रजिस्टरिंग इन नेशनल अप्रेंटिसशिप वेब पोर्टल WWW. हाँ, अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहला काम यह है कि www.mhrdnets.gov.in, इस पे जाके हमें ख़ुद को रजिस्टर करना है. काफ़ी इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. और उस पर रजिस्टर करने के बाद सारे डिटेल्स डालने के बाद पॉसिबली 24 आवर्स और मे बी आफ्टर 2 days दे विल गिव यू द कन्फर्मेशन ईमेल दैट यस यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड. तो जब आप अपनी डिटेल्स इस पर डाल देते हैं तो वो थोड़ा रिव्यू में 1 दिन या 2 दिन का टाइम लगता है. उसके बाद फिर जो है वो आपका कन्फर्म होकर वो आपको एक ईमेल करेंगे कि हे स्टूडेंट और डियर जीशान और वट एवर योर नेम इज़, डियर जीशान, यू हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और रजिस्टर्ड फॉर नेट्स एंड यू हैव दिस फॉलोइंग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड. तो उसकी जो है एक प्रिंट निकाल लेनी है, ये पहली चीज़ करनी है. दूसरा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर. किसी भी MBBS से जो है एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है. या तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लो या फिर किसी भी MBBS डॉक्टर से बनवा लो. मतलब कि उस फिटनेस सर्टिफिकेट पे उसकी जो है वो होनी चाहिए, स्टैंपिंग होनी चाहिए. और स्टैंपिंग के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. तो स्टैंपिंग के साथ वो MBBS उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उनका साइन होगा. तो ये चीज़ होगी, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें. हाँ, तीसरा पॉइंट देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स.
अब ये चीज़ थोड़ा फोकस करो, क्योंकि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अकाउंट चलेगा। कोई मसला नहीं, अगर तुम इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली एंड यू कम फ्रॉम बिहार और यू कम फ्रॉम यूपी, नो प्रॉब्लम, ओपन एन अकाउंट इन दिल्ली ओनली। अगर तुम दिल्ली में हो तो दिल्ली में ही स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवा लो। जहाँ पर भी तुम हो, जहाँ पर भी कोई भी ब्रांच हो, वो मैटर नहीं करता, बट स्टेट बैंक का होना चाहिए। तो स्टेट बैंक का अकाउंट मस्ट है। अकाउंट जब हो जाएगा तो पासबुक के फ्रंट पेज की ज़ेरॉक्स लेकर आना है। ये हो गया। सेकंड थिंग जो है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। यस, एक आता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसे हम पीसीसी कहते हैं। तो आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपका घर अगर जहाँ भी है, तो वहाँ पे एक लोकल पुलिस स्टेशन होगा। तो वहाँ पर जाके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहना कि सर मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना कर दीजिए या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बना कर दीजिए। ऑफर लेटर ले जाकर दिखाना कि आई एम गेटिंग द ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी इन सच अ गुड कंपनी, है ना। इतनी अच्छी कंपनी में सर हमारा वो ट्रेनिंग का मसला है सर, तो आप मुझे एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दीजिए। अगर आप इस तरह से अपने एसएचओ से या फिर जो भी पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिशियल है उनसे बात करेंगे, तो वो आपको एक पेपर पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। उसके बाद है टू स्टैम्प साइज फ़ोटोज़, ये तो क्लियर है। कोविड नाइन्टीन टेस्टेड नेगेटिव रिपोर्ट डन विद इन 72 आवर्स। तो कोविड 19 जो है उसका रिपोर्ट भी आपको लेकर जाना है। मतलब कि आपको अगर 27 को रिपोर्ट करना है तो आप जो है 26 को टेस्ट करा लो। 26 को मॉर्निंग में कराओ तो 27 को आपको दे देगा। तो अगर बेंगलोर में बताओ तो मैं बेंगलोर में यशवंतपुर में डॉक्टर पैथ लैब के हैं, मतलब वहाँ पे टेस्टिंग सेंटर्स हैं। तो आप मॉर्निंग में अगर 9 बजे उनको दो सैंपल, तो वो आपको इवनिंग 4:30 में आपको रिपोर्ट दे देंगे। और 500 रुपये उसकी फ़ीस है, दे हैव द 500 फीस। और अगर तुम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करवाते हो तो वहाँ पे नो मोर देन 48 आवर्स लेते हैं वो। तो अगर घर से करा कर आ रहे हो तो कोई बात नहीं, घर पे सैंपल दे दो, जब तक तुम 2 दिन में यहाँ पहुँचोगे तब तक तुम्हारा रिपोर्ट आ जाएगा। तो वो भी चीज़ ओके, बट एक चीज़ श्योर रखो कि इट शुड बी विद इन 72 आवर्स। अब तुम कहीं भी करा लो, फाइन। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कहीं मतलब नहीं करा पा रहे हो, एकदम टाइम नहीं है, तो बेंगलोर एयरपोर्ट पे करवा लो। ये 3 से 4 घंटे में ये रिपोर्ट दे देते हैं, फाइन। कमिंग टू द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हाँ आपने सिंगल डोज लिया है, डबल डोज लिया है, तो उसकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो आप प्रिंट आउट ले लो। अगर अगर आपने सिंगल डोज लिया है और आपका अभी सेकंड डोज का टाइम नहीं हुआ है, तो आप सिंगल डोज का ही सर्टिफिकेट अटेस्ट करो, मतलब ज़ेरॉक्स ले आओ। या अगर द सेकंड डोज का टाइम हो गया, आपने सेकंड डोज नहीं लिया, तो नो प्रॉब्लम, गो टू द वैक्सीनेशन सेंटर एंड टेक द सेकंड डोज एंड प्रिंट आउट लेकर फिर वो आ जाओ। अगर तुम्हारा टाइम हो गया है सेकंड डोज का, तो सेकंड डोज लो और फिर उसकी सर्टिफिकेट लो, फिर आ जाओ। तो ये चार चीज़ें हो गई। मतलब ये पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना इजी है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट होना चाहिए मतलब एनी हाउ होना ही चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी बैंक नहीं चलेगा। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, येस, गो टू दी लोकल पुलिस स्टेशन एंड आस्क देम, दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट। फोटोज़, कोविड 19 रिपोर्ट ऑफ कोर्स, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इट इज़ लाइक इट कम्स अंडर दी government. Basically, it manufactures, I think, the defensive weapons, those who are used in war and बॉर्डर्स। तो यहाँ पे जो है एक यूनिफॉर्म बेसिकली फ़ॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए, जो ट्रेनर्स जो ट्रेनी होते हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म होता है। इवन आई हैव बिन देयर, मैं वहाँ गया था। इवन दी जो वर्किंग लोग होते हैं, दे आल्सो हैव यूनिफॉर्म, दे आर नॉट लाइक वियरिंग देयर कैजुअल क्लॉथ्स, दे आर नॉट इन देयर सिविल ड्रेस, दे हैव द प्रॉपर यूनिफॉर्म। सो जो ट्रेनी स्टूडेंट्स होंगे उनके पास भी प्रॉपर यूनिफॉर्म होगा। तो बॉयज़ के लिए ये यूनिफॉर्म है और गर्ल्स के लिए ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। और हम कुछ टर्म्स कंडीशंस को देखते हैं स्टाइपेंड को लेकर। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड यू विल बी पेड ओनली स्टाइपेंड एट द अप्लीकेबल रेट्स। द करंट रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल पर मंथ इज ₹10,400, ठीक है। अब स्टाइपेंड को लेकर क्या है ना, कि ये स्टाइपेंड जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब अपने मन से डिसाइड कर लेते, नहीं। इनकी एक्चुअली एक मतलब एक इनका वो होता है, एक गाइडलाइन होती है इनकी इनकी एक बैचलर वालों के लिए है 11,200 है, डिप्लोमा वालों के लिए 10,400 है ना। तो इनका एक कुछ गाइडलाइन होता है, अकॉर्डिंग टू दैट दे सेट, है ना। करंट रेट ऑफ स्टाइपेंड कह रहा है ना, ये रेट ऑफ स्टाइपेंड। तो टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। अगर हम 2013 की बात करें, 14 की बात करें, उस टाइम पे 5,000 वो देते थे। तो नाउ वी हैव अ ह्यूज टाइम डिफरेंस, सो नाउ दे आर गिविंग 10,400 स्टाइपेंड। और जो स्टेट बैंक का अकाउंट होगा उसमें ये पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे ऑन टाइम।
वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, क्या क्या फैसिलिटीज़ कंपनी देंगी? कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ऑन चार्जेबल बेसिस। हाँ, बिल का अपने कैंटीन है तो बिल जो है आपको कैंटीन में वो पॉसिबली, अगर आपको शिफ्ट के हिसाब से है, अगर पॉसिबली तो ये है कि मॉर्निंग टू इवनिंग जो नॉर्मली 8 घंटे की ड्यूटी होती है वो होगा, 8 घंटे का ट्रेनिंग होगा, तो उसमें आपको शायद ब्रेकफास्ट और लंच वो देंगे। और दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, आप जैसे बिल जो है यहाँ पे यशवंतपुर से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो भी उस ऑफिस से 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आमतौर पे अगर जो भी जिनको भी ट्रेनिंग करना होगा तो वो रहेंगे, 50 किलोमीटर तो दूर रह नहीं सकते। तो जो भी कंसिडरेबल डिस्टेंस होंगे, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, पॉसिबली 30, तो बेल की जो बस है वहाँ जाकर उन्हें रिसीव करेंगे, बच्चों को, ट्रेनिंग को वहाँ पे रिसीव करके फिर उन्हें जो है जहाँ पे जिस भी डिवीज़न में उनको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे जो है इनको वो पिकअप कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, फ्री ओपीडी मेडिकल फैसिलिटीज एट बेल हॉस्पिटल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अपना हॉस्पिटल है, तो अगर कोई बीमार पड़ता है या किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो दे विल हैव द फ्री मेडिकल स्टफ, फाइन। नाउ एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सम ऑफ ₹5 लाख। फॉर गॉड सेक, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अगर कुछ मसला हो जाता है तो उसमें जो है आपको मेडिकल क्या बोलते हैं इसको, 5 लाख का आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। अगर आप बाय द वे यू हैव सम डेथ और यू become the victim of any accident and you lose your life, so they will be giving you 5 lakhs, possibly to your family. You are required to undergo training diligently as instructed by your superiors from time to time. हाँ, आपको जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी डिलीजेंटली का मतलब होता है कि मतलब शौक से, जज्बे से, है ना, मेहनत करके, है ना, मेहनत के साथ उस चीज़ को करना है। जो भी ट्रेनिंग वो आपको इंस्ट्रक्शन, जो आपके सीनियर होंगे, जो सुपेरियर होंगे, जो आपके ट्रेनर होंगे बेसिकली, तो उनकी बातों को बिल्कुल टाइम टू टाइम सुनना है, जैसे वो कहेंगे वैसे करना है। यू शुड ऑब्जर्व ऑल द रूल्स रेगुलेशंस एंड सेफ्टी नॉर्म्स एज अप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। सारे रूल्स रेगुलेशंस, जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। क्योंकि सेफ्टी रूल्स यहाँ पे मैटर क्यों करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जैसे कि तुम्हारा जैसे तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इफ़ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स सो यू हैव द वर्क इन टेस्टिंग, you have to do maybe some testing, and if you're from mechanical you have the work in maintenance. So in all stuff safety is like very important, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेफ्टी का भी खास ख्याल रखना है। यू आर लाइबल टू बी पोस्टेड एट टू एनी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एज डीम्ड फिट बाय द बिल मैनेजमेंट। हाँ, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपको अगर सपोज़ किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको वो पोस्ट करता है, यानी कि अगर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है, आप शुरू में 2 महीने आपको वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में रखा, नेक्स्ट 2 महीने वो आपको मेंटेनेंस में रखा, नेक्स्ट तीसरे महीने वो आपको प्रोक्यूरमेंट में रखा, तो जिस भी डिपार्टमेंट में वो आपको रखेगा यू विल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यू कैन नॉट क्लेम, तुम ये नहीं कह सकते नहीं सर आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स सो आई हैव टू बी इन testing only. No, you have no right to say such thing. Clear? Now coming to the 9 points. Your attitude towards continuation of the training would be based on monthly reports submitted by the head of the department under whom you will be undergoing training. अब तुम्हारा जो परफॉर्मेंस होगा, 12 महीने की ट्रेनिंग है, 1 साल की ट्रेनिंग है, मंथली जो है ना, तुम्हारा तुम्हारा जो जो भी बिहेवियर है, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, उनका एक स्टेटस, उनकी एक रिपोर्ट, उनकी एक फ़ाइल तैयार होगी, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सबमिट होगा कि सपोज़ मेरा नाम जीशान है, तो दिस बॉय मिस्टर जीशान वाज अंडर गोइंग ट्रेनिंग, और इस 1 महीने में इसका ये परफॉर्मेंस है, इतना एक्टिव था, इतना रिस्पॉन्स करता था, डिसिप्लिन में रहता था, इनडिसिप्लिन नहीं था। तो ये सारी चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि somehow it speaks about your character when you will be getting a character certificate from that organization also, so that will be like very much contributing. If at any time during the period of the training the head of the department where you are undergoing training feels that you are not taking sufficient interest in learning, you are liable to be terminated from the training. हाँ, अब ट्रेनिंग हो रही है, अब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पॉसिबली तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। दे हैव दिस राइट, उनको ये राइट्स है कि ये बच्चा अगर सीरियस नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो दे कैन टर्मिनेट यू। एनी टाइम ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड यू विल नॉट बी इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद एनी अदर अंडरटेकिंग बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज़। हाँ, ये चीज़ देख लो, ख्याल करना है। एनी टाइम ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड यू विल नॉट बी इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद एनी अदर अंडरटेकिंग बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज़। अब ऐसा नहीं कि अब तुम्हारा 1 साल का ट्रेनिंग है तो तुम साथ में कहीं पे दूसरी जॉब भी कर रहे हो, या फिर तुम्हारे ट्रेनिंग है तुम अपना बिजनेस भी कर रहे हो, नहीं, यू हैव टू गिव द फुल टाइम हियर ओनली। यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये भी है, ऑफिशियली तो नहीं है, जैसे आपको ये है कि दे आर ही और शी इज़ डूइंग बीटेक एंड एट द सेम टाइम इज़ ऑल्सो डूइंग ट्रेनिंग, सो इट इज़ ऑफिशियली नॉट लाइक
not I can say not acceptable, है ना, because if he is doing BTech, how he will be doing the training? So yeah, this is one of the point of discussion, or not discussion, but yeah, they are not allowing them, or also if you are in final year even, then you are not eligible for this, or you are working, of course you are not eligible. If you are working, then how you can do the training? This is very much simple. That's why they are very much clearing, speaking here. Anytime during the training period, you will not be engaged directly or indirectly. Directly or indirectly, like you are doing uh, things, and meanwhile they also do not allow the phones, so you have some business related thing, impossible, that will be difficult for you. Anytime during or afternoon the termination, or after the termination of your training with the company, you will not disclose to any person whomsoever any information relating to the company or its customers, or any trade secrets of which has to your knowledge during the training period. Yes, अगर किसी वजह से कंपनी तुम्हें टर्मिनेट कर देती है ना, मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन तुम्हें कंपनी देती है, तो उसमें जो है तुम डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी को। मतलब अब ऐसा नहीं, एक तरह से तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, यू गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, अ लॉट ऑफ आइडियाज, अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, सम आर वेरी मच कॉन्फिडेंशियल, सो यू कैन नॉट, यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस विद एनी वन, है ना, कंपनी कस्टमर सर्विस सीक्रेट्स विच हैज टू योर नॉलेज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, वेरी मच फाइन। अपॉन सक्सेसफुल completion of training, you will cease to be a trainee under the apprenticeship, है ना, and the company has no obligation to provide offer you a job after the completion of your training. Yes, ये चीज़ पॉइंट 12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को ये भ्रम होता है कि हम जो ट्रेनिंग कर लेंगे तो आई विल बी द परमानेंट जॉब होल्डर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। नो ब्रो, it is not some, it is nothing like that. They hire 500 students, they hire thousands of students. They cannot claim, they cannot give all 500 students, all 1000 students job at a time, ठीक है? तो वो ये क्लेम नहीं करते कि अब तुमने ट्रेनिंग कर दी तो हम तुम्हें जॉब दे देंगे परमानेंट, नो, बट येस, फ़ायदा ये है कि इफ़ यू आर डूइंग द ट्रेनिंग इन सच अ autonomous, such a huge company, such a huge PSU, such a prestigious PSU, तो फ़ायदा है कि इफ़ यू गो टू अदर कंपनीज, अदर इंडस्ट्रीज, अदर corporate, other companies, so they will be like preferring you. Yes, this boy, this man, this girl has an experience, has a 1 year experience, so they will be giving you the priority and the preferences, उसका फ़ायदा है, ठीक है? यू विल बी, एक चीज़ और है ये, वो क्लैरिटी के साथ नहीं कर सकते, बट येस, इफ़ यू आर वर्किंग इन दैट कंपनी, इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू आर वेरी मच एक्टिव, तुम काफ़ी सिंसियर हो, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव हो, प्रोएक्टिव हो, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव हो, तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो उसकी बेस पे ये पॉसिबल है कि यू विल हैव अ गुड रेपुटेशन देयर, तुम्हारे पास वहाँ पे कुछ अच्छा रेपुटेशन होगा। इन फ्यूचर मे बी कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइप के जॉब्स अवेलेबल होंगे तो मे बी दे कैन गिव यू सम प्रेफरेंसेस, दैट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अदरवाइज जो प्रॉपर वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमा लेवल पे जूनियर इंजीनियर की, जैसे प्रोडक्शन में है, तो उसमें है कि आपको जो है वो दे हैव द एग्ज़ाम्स, है ना, यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम्स, एंड देयर सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 24,000 आई बिलीव। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट 13, you will be entitled for maximum 12 days of casual leaves and 15 days of sick leave during the training period. You have a, अब देख लो, 1 साल की ट्रेनिंग होती है ना, 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, सैटरडे संडे तो नॉर्मली छुट्टी होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि सिर्फ संडे को छुट्टी होगी या नहीं, या दोनों दिन होगी छुट्टी। तो मैक्सिमम जो है 12 दिन की छुट्टी है, पूरे 1 साल में 12 दिन की छुट्टी तुम्हारी बनती है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा अगर तो बीमार वगैरह अगर तुम पड़ गए तो 15 दिन की लीव है। In case if you absent for training for more than the specified leaves, you will not be liable for apprenticeship certificate and may lead to the termination from your training. अब तुम 15 दिन से ज़्यादा अगर छुट्टी मार रहे हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, तो 15 दिन तो फ़ाइन है, 12 दिन फ़ाइन। अगर इससे ज़्यादा तुम छुट्टी कर रहे हो, 2 महीने नहीं आ रहे, 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, 50 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, तुम्हारा पता नहीं है, तो यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग, तुम ट्रेनिंग से टर्मिनेट हो गए हो। दूसरी चीज़, ट्रेनिंग से टर्मिनेट हो गए हो, और ऐसा भी है कि तुम अब लास्ट ट्रेनिंग के लास्ट स्टेज पे हो और तुम लास्ट में 2 महीने बिल्कुल गैप कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, नो, दे आर क्लियरली मेंशनिंग दैट दे आर नॉट गोना गिव यू द सर्टिफिकेट, सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो, यू आर प्रेजेंट देयर most of the time, all the time basically. Coming to the point 14, if you commit breach of any condition set out here herein or neglect your training
or for indiscipline or for misconduct, the company may take such action as it may deem appropriate, इंक्लूडिंग टर्मिनेट योर ट्रेनिंग विद इमीडिएट इफेक्ट। कुछ बदमाशी करते हो, कुछ हरकत करते हो, कुछ ऐसी हरकत कर लेते हो जो उनके रेगुलेशंस के खिलाफ है, जो बिल्कुल इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, तो वहाँ पे जो है कंपनी के पास पूरा राइट है, पूरा अथॉरिटी है कि वो जो है तुम्हें टर्मिनेट कर दे ट्रेनिंग से। यू आर नॉट परमिटेड टू ब्रिंग मोबाइल फोन, पेन ड्राइव एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एंड ऑल्सो यू शुड नॉट कैरी एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। जब तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होगा तो तुम्हें आमतौर पे होता है, जैसे बिल हो गया, भेल हो गया, तुम्हारा डीआरडीओ हो गया, इस तरह की जो पीएसयूज़ होती हैं, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, ये काफ़ी सिक्योर होती हैं। तो इनमें तुम्हें इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ नहीं करेंगे। तुम इफ़ यू आर वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, तो यस यू हैव द फुल राइट्स टू कीप योर फ़ोन इन योर पॉकेट। तुम अपने पॉकेट में फ़ोन रख सकते हो, बट बिल में, भेल में, या फिर आप डीआरडीओ की बात करो, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, या फिर तुम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करो, तो इस इन कंपनीज़ में जो भी ट्रेनिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ोन अलाउ नहीं करते। इवन जो कुछ जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे होते हैं, उनमें भी ये फ़ोन अलाउ नहीं करते। तो तुम्हारी जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो तुम फ़ोन वगैरह तुम्हें अलाउ नहीं होगा कि तुम फ़ोन लेकर चले गए या पेन ड्राइव पॉकेट में लेकर चले गए, नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, देर आर सो मैनी कॉन्फिडेंशियल थिंग, देर नो वन इज श्योर दैट यू हैव अ पेन ड्राइव एंड तुम गए हो तुम्हारा टेस्टिंग में, तुम पेन ड्राइव यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव में रख लिए। पॉसिबली यू आर गोइंग इन साइड, यू आर टेकिंग द पिक्चर्स ऑफ द इक्विपमेंट्स, वेपन्स, इक्विपमेंट्स, apparatus, machines, no. Karan, we take this opportunity to welcome you for the training and look forward to a pleasant and fruitful learning association with us. Of course, तो ये हो गया पूरा, और दिस इज़ ऑल अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने डिस्कस कर दिया पॉइंट्स वगैरह। हैव अ गुड लक, गो एंड जॉइन द कंपनी एंड एन्जॉय। बेंगलुरु की बात करें अगर हम, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। आई हैव स्टेड हियर फॉर मोर देन 3 days एंड लोकेशन इज़ वेरी मच फाइन एंड प्राइम लोकेशन। थोड़ा महंगा शहर है। रूम्स तुम्हें अगर लॉज लेते हो तो 1 night stay दे माइट चार्ज यू 800, 1000 फॉर 24 hours। खाना बोलो तो अगर नॉर्थ इंडियन हो, इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सो पॉसिबली यू विल नॉट बी लाइकिंग दिस साउथ इंडियन फूड, बट येस देयर आर होटल्स, पंजाबी होटल्स आर देयर, नॉर्थ इंडियन होटल्स आर देयर, तो you will be like getting the North Indian food also. Talking about the weather, very pleasant weather. You can just I'm coming from Delhi, so in Delhi we have very chilled cold. While in Bengaluru we do not have that cold. We are just like we are very much free to walk in trouser and t-shirt. तो मौसम काफ़ी अच्छा है, ट्राउज़र टी शर्ट में तुम घूम सकते हो। चश्मा पहन लो, ट्राउज़र टी शर्ट में पहनो, घूमो, बिल्कुल अमेजिंग मौसम है। और थोड़ा शहर महंगा है ना। तो बाकी जो तुम्हारी जो ट्रेनिंग में जो 10,400 रुपये मिलेंगे, उसमें कुछ पैसे वो पॉसिबली तुम्हें कैंटीन में ले लेंगे, और कुछ पैसे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का लेंगे, फिर भी अराउंड 9,000 यू विल हैव सेविंग्स। तो तुम्हें जो रूम रेंट मिलेगा यहाँ पे वो 6,000 में एवरेज मिल जाएगा, 2 BHK। तो यू कैन शेयर विद 3 partners और द 2 partners, है ना। Like it is very much fine in that your earned money, whatever the stipend you are getting from the bill, I think it is okay for you to survive in that amount only. You will not be needed to take extra amount from your family. I think so. Baki, let's come, let's join, and if you have any question, please ask me in the comment section. Thank you so much.